दोस्तों आप सब कैसे हो? मैं हूं आपका भाई अनिर्बान। Today I'm going to give you the full review of this Vivo V11 Pro which I am already using for about 3 months 15 days. So इस वीडियो पे मैं इस फोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स है, and this will be my full honest review from my side. So watch this video carefully, like this video also. So let's see. First of all, I have already made the separate review video of this Vivo V11 Pro after using almost 25 days. So if you haven't watched that video, watch that video also. And I am making this separate video, separate full review of this Vivo V11 Pro क्योंकि Instagram में और in the comment section में बहुत सारी सब्सक्राइबर्स एंड रिव्यूज भी आस्क किया था कि इस वीडियो पे नेटवर्क इशू आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। सो इस वीडियो पे मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिल्ड क्वालिटी जो है इट्स क्लासिक बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि मेरे हाथ से रादर 3 to 4 टाइम्स फोन ऐसे गिर गया, लेकिन पीछे में देखिए, पीछे में एक भी ग्लास नहीं टूटा। एंड दिस इज नॉट अ फुल्ली ग्लास, इट्स अ पॉलीकार्बोनेट ग्लास फिनिश। बट ट्रस्ट मी, मेरे हाथ से जब ये फोन पड़ गया था किसी हालत पे एक भी क्रैच भी नहीं हुआ और टूटा भी नहीं। सो इसीलिए बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड एंड इज वेरी मच गुड टू वर्क, क्योंकि बेजल्स बहुत ही स्लिम बेजल्स है एंड बहुत ही पतले बेजल्स है। सो बिल्ड क्वालिटी इज रियली बेस्ट। If you talk about the display is really very much good. It's a 6.41 inch Super AMOLED display and the display is pretty bright and the sunlight visibility is really great. The blacks are really very much punchier, the whites are really white, and the sunlight visibility, which I've already told you, is very much visible under the direct sunlight also. So the display wise, I have no complaint regarding the display of the Vivo V11 Pro. With that, if you talk about the design is very much elegant, very much slim to hold. See, there is a gold rim over here at the back camera and it's looking really fabulous. So if you talk about the OTG function, yes my friends, it does support the OTG function and it's really very much working. So no problem regarding that. First of all, जो unique feature है वो है in display fingerprint scanners. That's a very much greatest thing that Vivo have provided under the budget of rupees 26,000, and this phone has a 6GB RAM, 64GB internal, and it has a Snapdragon 660 AIE octa-core processor which is 2.0 GHz octa-core processor. इसके साथ 12x2 megapixel means 12x2 first camera and second camera is a 5 megapixel, that means 24 megapixel camera plus 5 megapixel camera you are getting at the rear facing camera and 25 megapixel front facing camera. And the पीछे वाला जो कैमरा है वो dual pixel sensor है, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइटिंग में अंडर लो लाइट में काफी अच्छा फोटो खींच पाओगे और उसके साथ वीडियो भी बहुत अच्छा क्लैरिटी देगा। एंड उसके साथ 3500 mAh बैटरी एंड द मेन थिंग इज दैट इस फोन में काफी फास्ट चार्जर वीवो ने प्रोवाइड किया है, वेरी मच फास्ट। इफ यू टॉक अबाउट द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हाउ इट वर्क्स एंड उसके साथ फेस अनलॉक फीचर कैसा है, सो देखिए ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फंक्शनलिटी है। तो इस पे हाथ रखिए, ऑन हो गया, थोड़ा सेकेंड्स लगता है अगेन, ये कभी कभी ये अटक भी जाता है, तो देखिए अगेन खुल गया। तो आफ्टर गेटिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट फ्रॉम द वीवो, द फिंगरप्रिंट स्कैनर इज मच मोर बेनिफिशियल नाउ, सो दैट्स क्वाइट इंप्रूवमेंट दैट वीवो हैज प्रोवाइडेड। उसके साथ जो फेस अनलॉक फीचर है दैट्स अ मोस्ट रिलायबल थिंग। सो ये अनलॉक, ये लॉक है, तो 1 2 3 इट अनलॉक्स, अगेन 1 2 3 इट अनलॉक्स। Face unlock feature is remarkably very much fast and very much useful also, so you don't need to press down the finger under the display. First of all, Vivo are providing the Fun Touch OS. Oppo में Color OS देता है and Vivo में Fun Touch OS देता है, जो very much customized high skin। उसके साथ जो Snapdragon 660 प्रोसेसर दिया हुआ है, मीन्स वो AIE octa-core प्रोसेसर, तो Android सिक्योरिटी पैच लेवल कितना जल्दी आएगा। हाँ, after purchasing the Vivo V11 Pro, continuously they are providing the security update level। उसके साथ बहुत सारे improvements आ रहा है मेरे फोन में। देखिए अभी जो अपडेट है Android security patch level वो है 2018-12-01, that means 1st of December of 2018 में security update आ गया है। तो they are continuously providing the security update, it's a very good thing। जो फोन का स्टोरेज है वो है 64GB, आउट ऑफ 64GB मेरे फोन में अभी है 15.16GB इज फ्री। ओके, तो इतना सारे एप्स में डाउनलोड कर सकूं और फोटोज ऑलमोस्ट अराउंड 1500 to 1600 फोटोज, उसके साथ 200 प्लस वीडियोस भी है मेरे फोन में सेव किया है। तो उसके होकर भी मेरे फोन में एक बार में हैंग नोटिस नहीं किया और उसके साथ
अचानक फोन बंद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो फ्लूइडिटी के मामले में इस फोन इज रियली एक्सीलेंट and under ₹26,000 Vivo has done a brilliant job with this Vivo V11 Pro। पहले मैंने Vivo को गाली देता था, एक टाइम में Oppo को भी गाली देता था। पहले एक टाइम में बोला था Vivo and Oppo are sisters, brothers and sisters। So अभी जो सिस्टम हुआ है, जो अभी जो अपग्रेडेशन किया है Vivo ने, वो कमाल कर दिया इस फोन में। That's why I purchased this phone after getting some good reviews from others, those who have already purchased। So after purchasing this phone, I was thinking about the camera। फर्स्ट टाइम आई वॉज यूजिंग दिस मच एक्सपेंसिव फोन फ्रॉम द Vivo। मैंने आईफोन भी यूज किया हूँ, सैमसंग Note 9 भी यूज कर चुका हूँ, S9 Plus, बहुत सारी फोन में यूज कर चुका हूँ, लेकिन Vivo में मैं फर्स्ट टाइम ये एक्सपेंसिव फोन में परचेज किया हूँ। तो कैमरा के मामले में बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, वोमेन, जेंटलमैन, व्हाटएवर, कैमरा इज फैंटास्टिक, इज सुपर ऑसम कैमरा, वेदर एज इन द फ्रंट एज वेल एज इन द रियर ऑल्सो। रियर में 12x2 megapixel plus 5 megapixel, 24 megapixel plus 5 megapixel camera। Yes, this phone doesn't support the optical image stabilization और EIS। ये ना होकर भी जो क्वालिटी दे रहा है हमारे लोग को, वो काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम है। EIS, OIS इतना प्राइस देकर Vivo को ये चीज देना जरूरी होगा, क्योंकि इतना प्राइस देकर, देखिए कम प्राइस में EIS भी है और OIS भी होता है। I think this thing Vivo should improve, except that जो कैमरा क्वालिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी है, रात में बोलो, दिन में बोलो, सुबह में बोलो, कलर पिक्सलाइजेशन इज रियली ग्रेट। एंड जो विविडनेस है, वो कलर का पिक्सलेशन जो विविडनेस है, वो काफी प्रीमियम है एंड काफी पॉइंट डॉट भी है। तो अकॉर्डिंग टू मी द कलर्स आर मच मोर पंचियर इन दिस Vivo V11 Pro। सो शूट करने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा जैसे नॉर्मल आदमी का फेस में। ब्यूटिफिकेशन मोड भी वो काफी अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छा है, तो रात में फोटोज काफी अच्छा खींचता है। एंड उसके साथ इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट फेसिंग कैमरा, देन फ्रंट फेसिंग कैमरा इज रियली गुड। 25 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, इसमें फ्लैश नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है लो लाइट में वो काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम भी है। सो अकॉर्डिंग टू मी कैमरा के मामले में मेरा को उतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, वीडियो क्वालिटी काफी शेक हो जाता है क्योंकि इसमें EIS OIS नहीं है। एट लीस्ट दे शुड गिव द EIS under ₹26,000। If you talk about the call quality, my friends, I am using the Jio, using the Vodafone also। Previously I also used with the Airtel also। I haven't faced any sorts of network issues। हाँ, एक बार मैंने नोटिस किया था 3 दिन पहले मैंने जब टाकी किया था, मेरे फोन में जियो का सिम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे फोन में टाकी एक जगह है, उसमें जियो का कोई नेटवर्क भी नहीं आया। कभी कभी आता है जाता है। ये सारी प्रॉब्लम मैंने 3 दिन में नोटिस किया है। उसके साथ मैंने कुछ कॉल ड्रॉप्स भी नोटिस नहीं किया। हाँ, नेटवर्क इश्यूज मैंने बोला था नोटिस किया हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है इस फोन में? यस, आई शुड टेल यू कि Vivo V11 Pro has done a brilliant job, क्योंकि रैम मैनेजमेंट जो है, रैम ऑप्टिमाइजेशन जो दिया है, तो गेमिंग खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं PUBG भी खेल चुका हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी PUBG एप्स नहीं है, मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद द PUBG गेम। सो मैंने जब खेला है PUBG गेम में किसी हालत पे एक भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया हूँ, एक भी लैगिनेस भी मैं नोटिस नहीं किया हूँ। ऑल आर फाइन। उसके साथ मैंने एस्फॉल्ट एक्सट्रीम गेम भी मैं खेल चुका हूँ। फीफा गेम्स में खेल चुका हूँ, एक भी प्रॉब्लम नोटिस है। लेकिन नोवा 3 में मैं समटाइम्स लैगिनेस फील किया हूँ, समटाइम्स लैगिनेस आर देयर इन द नोवा 3। अदर देन दैट, इफ यू प्ले PUBG, playing the asphalt extreme game or any other games like that with a high graphics, I am telling you, no sorts of lagginess here and there। उसके साथ जो हीटिंग, no heating nails are there in this Vivo V11 Pro। हाँ, after playing 25-30 minutes almost that, थोड़ा बहुत हीट हो जाता है। क्यों नहीं होगा? फास्ट चार्जिंग है ना, तो इसे होना चाहिए हीटिंग। तो इट्स नॉट दैट वेरी मच हीटिंग, ऑलमोस्ट अराउंड 35-36 ऑलमोस्ट, इट्स नॉट क्रॉसिंग 40 to 41। So no tension about the heating issues after playing the games। So if you talk about the battery life of this Vivo V11 Pro, this phone is doing a great job। The battery optimization is really good। After using this phone almost 3 months 15 days, अभी भी इस फोन में बैटरी का हालत एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने YouTube पे वीडियोस देखता हूँ, उसके साथ में सारी नेट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ यूज करता हूँ। उसके साथ पेन ड्राइव के मैं वीडियोस भी मैं देखता हूँ।
मेरा बैटरी ऐसे, मैं जब YouTube पे वीडियोस देखता हूँ आफ्टर वॉचिंग 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स कंटिन्यूअसली, बैटरी 3 to 4% जस्ट ड्रॉप होता है. सो दिस इज द बैटरी लाइफ ऑफ द Vivo V11 Pro. उसके साथ जो चार्जिंग स्पीड है फ्रॉम 15 to 100%, इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर. सो चार्जिंग के मामले में Vivo हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब with this Vivo V11 Pro. तो बैटरी क्वालिटी है 3500 mAh बैटरी, इसके होकर भी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है काफी अच्छा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आस्क Anirban that whether I should purchase this Vivo V11 Pro, my answer will be yes. You should purchase this phone under the budget of ₹26,000. सो इस फोन में जो कैमरा क्वालिटी है काफी अच्छा है, काफी मतलब बहुत ही अच्छा है अंडर द बजट ऑफ ₹26,000. जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है इज रियली फास्ट है. उसके साथ जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी काफी आ रहा है, काफी मंथ टू मंथ आ रहा है. मीन्स अक्टूबर में मैंने परचेस किया था, सितंबर में मैंने परचेस किया था. अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी जनवरी हो गया है. तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स डे टू डेज आ रहा है. सो नो प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेयर अपडेट्स. So overall this phone is a very much complete package under the budget of ₹26,000. So this is all about for today. If you have any questions regarding this phone, regarding this video also, don't forget to ask me. I will definitely answer every questions for you guys only. I have made this separate video after using the phone almost 3 months 15 days. So if you have any questions, don't forget to ask me. So thank you my friends. Till now, goodbye, Jai Hind and Vande Mataram.